को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो C++ और पाइथन आ जाता है उस पर, ठीक है। फिर अगर वेब डेवलपिंग में या फिर वेब डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, तो कि HTML CSS का यूज़ करके हम वो कर सकते हैं। देन आफ्टर आता है कि बैकएंड लैंग्वेजेस में आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अगर वेब डिज़ाइनिंग करनी है तो वो तो हो गई कि डिज़ाइनिंग के तौर पे आप CSS3 और HTML5 का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बैकएंड साइड पे कुछ वेबसाइट बनानी हो, कोई छोटी बड़ी, यू वांट टू डेवलप small little bit of and large number of websites, right? So you have to understand backend languages. Backend languages like PHP, JavaScript, .NET, etc. Right? So this kind of languages is help to develop and design your beautiful website is, right. So today's session is about PHP. We already done about the previous session like HTML and CSS, right. So HTML से HTML लैंग्वेज से आप अपनी वेबसाइट को, अपने वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हो। यू create your website and web pages. But now we discuss about website development backend languages like a PHP. So what you mean by PHP, and now what is the current position of this language in a market level, right? So today's session is about कि PHP किस तरीके से market पे अभी चल रहा है। So introduction about PHP. PHP started out as a small open source project that involved as more and more people found out how useful it was, ठीक है। कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, तो कि स्मॉल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के तौर पे इम्प्लीमेंट किया गया। Rasmus Lerdorf unreleased the first version of a PHP way back in 1994. 1994 में PHP का एक वर्जन बाहर पड़ा, ठीक है। PHP that is called Hypertext Preprocessor. Recursive acronyms like PHP is a Hypertext Preprocessor. PHP is a server-side scripting language. अगर जैसे कि आपने HTML, you're done with a previous session like a HTML, so you can create a web page like a simple is that के registration form या फिर login form, right? And then after, if you click on the button like a submit, OK or cancel, then fire the some external and other event fire, right? So that can be action is known as a PHP and backend kind of languages files. So PHP is a recursively hypertext preprocessor. PHP is a server-side scripting language. सो सर्वर साइड से कम्युनिकेट करने के लिए हमें जो बैकएंड लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड PHP. In HTML, it is used to manage dynamic content, database, session, tracking, event build, entire e-commerce site. आप PHP की मदद से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अगर डायनेमिक कंटेंट बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। डेटाबेस रिलेटेड इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, व्यू, ठीक है, वो करना चाहते हो डेटाबेस में एंट्री तो भी कर सकते हो। सेशन और कुकीज़, व्हाट यू मीन बाय सेशन एंड व्हाट यू मीन बाय कुकीज़। तो सेशन इज़ अ परमानेंटली स्टोर योर डेटा इन अ वेब ब्राउज़र एंड कुकी इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज डेटा इन योर वेब ब्राउज़र, राइट। सो सेशन एंड कुकीज़ का भी आप ट्रैकिंग कर सकते हो, इवेंट बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि बटन क्लिक इवेंट, माउस मूव इवेंट। So all kind of event fire, you have to use the PHP language. It is integrated with a number of popular database, including MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix and Microsoft SQL Server. अब गाइस आपको डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर करना है तो बहुत सारी आपको क्या मिलेगी, डेटाबेस रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि MySQL वो कॉमनली यूज़ होता है। MySQL है, PostgreSQL है, ओरेकल पे भी आप डेटाबेस बना सकते हो, एंड माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में भी आप अपनी डेटाबेस बना के यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे PHP के कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपको डेटा स्टोर करवाना हो तो MySQL का आप यूज़ करोगे, ठीक है।
सो कैरेक्टर हिस्ट्री ऑफ अ पीएचपी। सबसे पहले आज हम अपने सेशन के टॉपिक की ओर बढ़े उससे पहले पीएचपी लैंग्वेजेस की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बैकग्राउंड हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो कैरेक्टर हिस्ट्री ऑफ पीएचपी, 5 important character history make PHP is practically natural possible. Simplicity. Why PHP is a simple language? Just because of their coding is so easy. You know, it's not difficult and not complex or complicated kind of project related. So it is a very common and very easy to understand language. Maybe I simplified in other words. So it is a very easy to understand language. Simplicity, effects, efficiency. एफिशिएंसी भी उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो जाती है। देन सिक्योरिटी पर्पस, अगर डेटा को आपको सिक्योर रखना हो सो आप गेट एंड पोस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो। पोस्ट मेथड से यूज़ करके आप अपने यूआरएल में जो जो डेटा पास होते हैं उसको क्या कहते हो, सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे भी आप ले सकते हो। तो PHP इज़ अ सिक्योर लैंग्वेज राइट नाउ। फ्लेक्सिबिलिटीज़, it can create a dynamic web pages, right? PHP can create a dynamic web pages with the help of communication with server side scripting language. So it is a flexible to remove and add some kind of data, right? And familiarity. So it is a core language in a web development. So basically it's a understand, easy to understand, and familiarity is more enough to compare to the other languages, right? So these 5 character history make the PHP is the best programming web developing language in a current right now and very basically used, right? So first of all we have to understand how can I write a PHP program and what is the need ऑफ अदर सॉफ्टवेयर। सो सबसे पहले आपके पास एडिटर कोई भी होना चाहिए। अब एडिटर कोई भी हो सकता है, नोटपैड++ में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है, कोडिंग कर सकते हो। सबसे पहले मार्केट में जो प्रोफेशनली तौर पे काम आता है वो है कि PHP लाइटर है, फिर ड्रीम वीवर है। ड्रीम वीवर इज़ द मोस्ट पावरफुल एडिटर इन अ करंट मार्केट, राइट? सो सबसे पहले एडिटर को चूज़ करो ताकि आप कोडिंग कर पाओ। फिर देन आफ्टर HTML एंड CSS का यूज़ करके आप वेब पेजेस बना सकते हो। अब उसमें किस तरीके से PHP इम्प्लीमेंट करना है, तो कि सबसे पहले HTML हेड टाइटल वो करके मैंने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, मैंने एक वेब पेज बनाया है। उसके अंदर मुझे PHP लैंग्वेज का यूज़ करके आई रियली वॉन्ट टू यूज़ द PHP लैंग्वेज एंड प्रिंट सम messages like a hello guys, hello all of you, whatever kind of, right? So we all are understand about the printf and echo, right? So C में और C++ में हम क्या करते थे, printf करके कोई भी मैसेज को प्रिंट करवाते थे। फिर पाइथन की बारी आई तो पाइथन में हम प्रिंट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर PHP में अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इको का यूज़ करना पड़ेगा। इको एंड डबल कोट्स एंड हेलो गाइस मैसेज प्रिंट करके आप PHP को स्टार्ट एंड क्लोज कर सकते हो। स्टार्टिंग करने के लिए आपको <? PHP की साइन करनी पड़ेगी एंड देन वो एंड करने के लिए $? एंड ग्रेटर की साइन करके आप PHP के कोडिंग को स्टार्टिंग एंड एंडिंग कर सकते हैं। देन आफ्टर /body एंड /HTML। ये मेरी बहुत ही सिंपल सी एक फाइल हो गई PHP की, राइट? सो इस पर मुझे सिर्फ एक मैसेज हेलो गाइस ऐसा कुछ प्रिंट करवाना है। अब गाइस थोड़ा प्रैक्टिकली तौर पे आ जाते हैं कि अगर प्रैक्टिकली आपको यही प्रोग्राम को रन करना हो तब आप किस तरीके से कर सकते हो, तो कि सबसे पहले आपको नोटपैड में ये कोड कर लेना है। देन आफ्टर यू हैव टू इंस्टॉल वेब सर्वर लाइक अ ज़ैम्प और वैम्प। यहाँ पे मेरे पास वैम्प वर्जन है, ठीक है। ज़ैम्प और वैम्प दोनों क्या करता है, एक लोकल होस्ट क्रिएट करके हमें वेब सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सा वेब सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, वैम्प का। तो वैम्प पे ओपन करोगे तब आपको यहाँ से पूछेगा कि वो ओपन है या नहीं है, ठीक है।
उसको ओपन करोगे तो आपको क्या यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई देगी। अगर ये वेब सर्वर बंद होगा तो ये रेड कलर का आ जाएगा, अगर शुरू है तो ये ग्रीन कलर का आ जाएगा। ठीक है, अब उसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा वेब सर्वर ओपन है या क्लोज है। तो सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र में चले जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, राइट। अगर लोकल होस्ट लिखने के बाद हमारा सर्वर अगर स्टार्ट हो जाता है तो हमें ऐसी स्क्रीन वेम की या तो फिर जेम की होम स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे जो जो आपने फोल्डर बनाए होंगे उसमें वो आपके फोल्डर भी यहाँ पे दिखाई देगी। अगर जेम आप यूज़ करते हो तो जेम के हिसाब से वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डेमो नाम का जो मेरा फोल्डर है उस पर मैंने सारे के सारे आज के एग्जाम्पल अभी रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लोकल होस्ट पे जाऊँगा, स्लैश करूँगा और वहाँ पे मेरे फोल्डर का नाम लिख दूँगा डेमो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सा एक प्रोग्राम जिस पे हम मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं कि कोडिंग को तो हमने समझ लिया, फिर अगर रन करवाना हो तो यहाँ से आप PHP की फाइल रन करवा सकते हो। ठीक है, simple.php करूँगा तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोकल होस्ट डेमो नाम का मेरा फोल्डर एंड देन simple.php नाम की मेरी फाइल, और उस पर मेरा कंटेंट है हेलो गाइस। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके का प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से PHP काम करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप फाइल बनाते हो तब आपको लोकेशन हमेशा एक ही जगह पे रखना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे C ड्राइव है, उस पर वेम्प आ जाता है, उस पर www का जो फोल्डर है उस पर आप अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हो ताकि वो आपको यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे दिखाई दे। ठीक है, जैसा कि हमने वेम्प शुरू किया था तब क्या हुआ था कि हमारा फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, डेमो न्यू फोल्डर ऐसा कोई भी जो हमने फोल्डर बनाया होगा वो यहाँ पे शो होगा। कहाँ पे, तो कि अगर आप www के फोल्डर में अगर आप डालोगे तब अपनी फाइल को वहीं पे स्टोरेज करवाना है। ठीक है, और फिर अगर उस फाइल को वहाँ से रन करोगे जेम्प और वेम्प शुरू करके, तब आप इजीली PHP के प्रोग्राम को रन कर पाओगे। तो ये PHP का बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम था। अब आ जाते हैं आज के सेशन के बारे में कि फंक्शन और एरे, ये जो दो टॉपिक है वो बहुत ही यूजफुल है। अब फंक्शन, व्हाट यू मीन बाय फंक्शंस, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि PHP फंक्शन आर सिमिलर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ फंक्शन इज अ पीस ऑफ अ कोड विच टेक वन और मोर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर, द सम प्रोसेसिंग एंड रिटर्न अ वैल्यूज। क्या कह रहे हैं कि PHP फंक्शन जो काम करता है वो सिमिलर एज इट इज, किस तरीके से, तो कि अदर जो प्रोग्रामिंग हमारी लैंग्वेजेस है C++, उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है फंक्शन, व्हाट यू मीन बाय फंक्शन, तो क्या फंक्शन इज अ पीस ऑफ अ कोड टू टेक अ वन मोर इनपुट फ्रॉम पैरामीटर फॉर्म ऑफ अ पैरामीटर, डज सम प्रोसेसिंग एंड रिटर्न अ वैल्यू। आप क्या करोगे, तो कि एक पीस ऑफ अ कोड करोगे जिस पे UDF यूज़र डिफाइंड फंक्शन, अगर कोई मतलब यूज़र खुद का एक फंक्शन बनाना चाहता है तो भी बना सकते हैं, और जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन उसकी पैरामीटर पास करके आप उसकी प्रोसेसिंग को प्रोसेसिंग कर सकते हो एंड देन रिटर्न आउटपुट आप ले सकते हो, रिटर्न अ वैल्यू ले सकते हो। सो यू कैन सी दैट you already have seen many function like fopen, fread etc. अब ये जो फंक्शन होते हैं ना गाइज वो इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, ओपन फंक्शन से क्या कर पाओगे, तो कि फाइल को ओपन करना चाहते हो। ठीक है, fread फंक्शन से आप उसको रीड कर पाओगे। देयर आर सो मेनी फंक्शंस इन अवेलेबल इन अ PHP लैंग्वेज, there are a built-in function, but PHP give you option to create your own function as well. PHP हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो कि एक ऑप्शन भी आता है कि आप अपना खुद का फंक्शन बना पाओ। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम मयंक है तो अब मैं अपना मयंक नाम का कोई फंक्शन बना दूँ, या तो फिर मुझे कोई अभी न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो नम वैल्यू ऐसा कोई मैं फंक्शन बना दूँ तो भी वो चलेगा। उसको बोलते हैं UDF फंक्शन, दैट इज कॉल्ड UDF फंक्शन। You can create your own function in a PHP language. So that is called UDF function, and inbuilt function is already available in a PHP language. There are two parts which should be clear to you. एक creating function, first of all is a creating a PHP function.
देन कॉलिंग अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन को आपने बनाया है, जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा. यू कैन नेवर सी द आउटपुट विदाउट अ कॉलिंग फंक्शन, right? So in fact you hardly need to create your own PHP function, because there are already more than 1000 of a built in a library function. 1000 से ज़्यादा फंक्शन उसकी लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल है गाइस, इनबिल्ट फंक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है. उसमें कई सारे आ जाते हैं, मैथ फंक्शन आ जाते हैं, टाइम डेट एंड टाइम फंक्शन आ जाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है. क्रिएटेड फॉर अ डिफरेंट एरिया, यू जस्ट नीड टू कॉल देम अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट. जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस फंक्शन का यूज़ करके उसको सिर्फ कॉल करना पड़ता है, ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन. फंक्शन ऑल द थिंग्स, फंक्शन क्या कहता है, आपकी कोई भी थिंग्स हो, आप जो भी करना चाहते हो उस पर आप कर सकते हो. सबसे पहले फंक्शन की सिंटेक्स आ जाती है कि फंक्शन किस तरीके से काम करता है. तो कि बेसिक सिंटेक्स उसकी क्या है, फंक्शन ये कीवर्ड है फंक्शन, राइट. एंड देन फंक्शन का नाम आपको देना है, यहाँ पे आप फंक्शन का नाम दोगे, ठीक है. जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शन हेलो, तो हेलो नाम का एक फंक्शन बन गया, ठीक है. फिर मैं यहाँ पे उस पर मैसेज प्रिंट करवाता हूँ इको हेलो वर्ड्स, एंड देन मैं वही फंक्शन को कॉल करवाता हूँ. तब कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन का नाम डिफाइन करना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करना पड़ेगा, एंड सेमीकोलन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. You never ever forget the semicolons, right? If you forget the semicolons and other special मतलब symbols, so you can face the error or bugs in your programs. So you have to understand that kind of semicolons and round bracket, curly bracket. You have to understand that rules, right? So that is the basic syntax. Then after I really want to प्रोग्राम ऑफ अ फंक्शंस एंड रिटर्निंग अ वैल्यू, मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न चाहिए, ठीक है. तब मैं किस तरीके से उसको कर सकता हूँ, तो ये उसका एक एग्जांपल है. फंक्शन हेलो बनाया है मैंने, राइट. इको कर दिया, इको मुझे हेलो चाहिए, एंड देन वो कौन है वो, मतलब यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली यूज़र का नाम प्रिंट होगा, ठीक है. तो वो नाम के वेरिएबल में मैंने उसको स्टोरेज करवा दिया है, एंड देन प्रिंट के टाइम पे मुझे वो वैल्यू चाहिए जिस पे जो भी कोई नाम होगा वो मुझे प्रिंट करके दिखाई देगा. देन इफ़, यहाँ पे मैं एक कंडीशन इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि इफ़ वो गाइज, अगर आप कोई भी वेरिएबल का यूज़ करते हो ना, तो उसके आगे एक डॉलर की साइन रहेगी, ठीक है. ये उसका रूल्स है, पीएचपी का रूल्स है कि अगर कोई भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना हो ना, तो सबसे पहले आपको डॉलर की साइन एंड देन वेरिएबल का नाम करना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने डॉलर की साइन एंड वो उसका नाम, जो वेरिएबल है उसका नाम दे दिया, इक्वल टू वर्ल्ड है. तो क्या करेगा, तो ही मुझे रिटर्न करके प्रिंट करवाएगा. अदरवाइज हाउ आर यू ऐसा कुछ मुझे प्रिंट करके दिखाई देगा, ठीक है. दोनों को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, जो मेरा फंक्शन था उसकी दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे कॉल करवाया है, हेलो. फिर उसमें मैंने वर्ल्ड डाल दिया मैसेज में, एंड देन सेकंड टाइम में जब कॉल करवाता हूँ तब मैंने उसको रीडर करवा दिया, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप यूडीएफ फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हो. और इनबिल्ट फंक्शन का तो आपको लाइब्रेरी में यूज़ होता ही है. जैसे कि आपको फाइल ओपन करनी हो तो एफ ओपन, ठीक है. अगर आपको मैथ फंक्शन का यूज़ करना हो इन मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मीन वैल्यू, ठीक है. वो सारे तो इनबिल्ट फंक्शन है, तो वो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो. लेकिन जब हम फंक्शन बनाते हैं आवर ओन फंक्शन, तब हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें और कैसे उसको कॉल करें. तो ये उसकी बात हो गई कि फंक्शन की. अब उसका प्रैक्टिकल सेशन में हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट मिनट गाइस. तो आप यहाँ पे वही जो हमने दिखाया था, ठीक है, फंक्शन का, वो फंक्शन का कोड यहाँ पे है. और आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप उसको कोड कर सकते हो.
अब एडिटर कोई भी हो, नोटपैड प्लस प्लस हो या फिर ड्रीम वीवर का यूज़ करते हो तो कोई भी चलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, HTML हेड टाइटल वो सारे जो बेसिक फंडामेंटल हमारे हैं उसका सेम एज इट इज़ यूज़ करवाना है। फिर बॉडी पार्ट में आते हैं, यहाँ से हमारा PHP का कोड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम PHP को स्टार्ट करते हैं कि लेस देन क्वेश्चन मार्क एंड PHP, उसकी जो सिंटेक्स है उसको फॉलो करते हैं। फिर यहाँ पे मुझे फंक्शन बनाना है, फंक्शन राइट मैसेज ऑफ, ऐसा मुझे एक फंक्शन चाहिए, क्योंकि ये UDF है, यूज़र अपने तरीके से कोई भी फंक्शन बना सकता है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, फंक्शन नाम का कीवर्ड का यूज़ किया है, फिर तो फंक्शन का नाम दे दिया है राइट मैसेज ऑफ। देन मुझे उसके अंदर प्रिंट चाहिए, मैसेज प्रिंट करवाना है, यू आर अ रियली अ नाइस पर्सन, हैव अ नाइस टाइम, ऐसा कुछ मुझे मैसेज चाहिए कि यू आर अ वेरी नाइस पर्सन एंड हैव अ नाइस टाइम, ठीक है। अब वही मैसेज को मुझे फंक्शन को कॉल करवाना है, तब मैं कॉल किस तरीके से करूँगा, राइट मैसेज, जो हमारा फंक्शन का नाम होगा उसको राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करके सेमीकोलन करके मैं उसको कॉल करवा दूंगा। तो क्या होगा, जो मेरा फंक्शन बना होगा ना ये उसको कॉल करेगा, कॉलिंग अ फंक्शन, एंड देन उसके अंदर जो जो हमने वैल्यू कोई भी इनपुट डेटा किया होगा वो हमें प्रिंट करके दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाया था, अगर मैं यहाँ पे लूप चलाऊँ या फिर कंडीशन इंपोर्ट करवा दूँ तो वो सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ पे जो जो आपने कोड किया होगा ना वो रन करके दिखाई देगा। फिर PHP के कोड को मैं क्लोज कर देता हूँ, /body/HTML को मैं वेब पेज को बंद कर देता हूँ। तब मैं इसको मतलब यूज़ करके हम देखते हैं कि किस तरीके से वो एक्चुअली आउटपुट हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले वहीं पे आ जाता है कि वेब सर्वर ओपन करो, लोकल होस्ट अपना ज़ैम्प वैम्प जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो, फिर अपने वही फोल्डर पे चले जाओ जहाँ पे आपने फाइल सेव की है, एंड देन आफ्टर उस फाइल को रन करो, जैसे कि फंक्शंस। तो फंक्शंस को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यू आर अ रियली नाइस पर्सन, हैव अ नाइस टाइम, वो मुझे फंक्शन कॉल करके वो मुझे प्रिंट करके दिखाई देगा, मेरा मैसेज जो भी होगा वो। सो दैट इज़ कॉल्ड UDF फंक्शंस। आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फंक्शंस को आप इजीली मतलब जो भी कोई इनबिल्ट फंक्शन हो उसका भी यूज़ कर सकते हो, एंड जो UDF फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बात हुई फंक्शन की। देन वेरिएबल स्कोप उस पर किस तरीके से आता है, ठीक है। तो वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं ना तो 3 टाइप उसके होते हैं, एक तो ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक फंक्शन है और एक क्लास आ जाता है, ठीक है। ग्लोबल और मतलब नॉर्मल वेरिएबल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो 2 टाइप के वेरिएबल्स आ जाते हैं। फिर आप अपने कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करो, फिर फंक्शन को डिक्लेयर करो, एंड देन आफ्टर अगर आपको कोई क्लास बनाना हो या तो फिर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अब उसके एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप किस तरीके से देख सकते हो, तो कि मैंने $A नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसको हम ग्लोबल कह सकते हैं क्योंकि सबसे ऊपर मैंने बना दिया है, ठीक है। उस पर मैंने वैल्यू डाल दी हेलो वर्ड सा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन हेलो, फिर अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उस पर कुछ डेटा स्टोर करवाता हूँ, जैसे कि हेलो A के अंदर $A के अंदर क्या है तो कि हेलो रीडर, एंड $B नाम का जो मेरा वेरिएबल्स है उसके अंदर मैंने हाउ आर यू डाल दिया। अब मैं फंक्शन को एक ही बार यहाँ पे कॉल करवाता हूँ, आई जस्ट कॉल ओनली वन टाइम फंक्शंस, एंड देन आई प्रिंट इको $A $B, जो जो मेरा $A और $B के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो मुझे प्रिंट करके दिखाई दे, ठीक है। तो उसी तरीके का ये प्रोग्राम है जिस पे वेरिएबल स्कोप भी आ जाते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी आ जाता है, फिर फंक्शन बनाना भी आ जाता है, फंक्शन को कॉल करना भी आ जाता है, ठीक है। देन आफ्टर तो कि फंक्शन को कॉल तो कर दिया, लेकिन अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना हो तब वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो कि वेरिएबल स्कोप एंड कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक लिया, उस पर हेलो वर्ड ऐसा कुछ डाल दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फिर मैं उसको ग्लोबली यूज़ करवाता हूँ ताकि जितनी भी बार मुझे यूज़ करना हो उस वेरिएबल को तो मैं ताकि यूज़ कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया है, एंड देन आफ्टर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, फिर वही वेरिएबल को मैं प्रिंट करवा देता हूँ।
और देन लास्ट में मैं कॉल करवाता हूँ अपना फंक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग अलग तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो ये वेरिएबल और फंक्शन की बात हो गई कि फंक्शन, व्हाट यू मीन बाय फंक्शन, एंड फंक्शन किस तरीके से पीएचपी पे काम करता है। देन आफ्टर आते हैं एरे के ओर पे। एरे इज द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट इन ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, बट इन based on a PHP language. So PHP में array is the most powerful concept, right? अब सबसे पहले तो एरे का मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी है। एरे मीन्स व्हाट, तो इन अ सिंगल लाइन्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही टेक्निकल लाइन पे अगर आपको दिखाई देगी, ठीक है। बहुत सारी मतलब वो कह सकते हैं थियोरिटिकल पार्ट्स आ जाता है उस पर, लेकिन इन अ सिंपल वर्ड्स पे अगर उसको डिफाइन करना चाहो एरे को, तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ अ डेटा, राइट। अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा है तब आप उसको एरे के तौर पे रिप्रेजेंट करवा सकते हो, ठीक है। सो टेक्निकल लैंग्वेजेस में जाते हैं कि वो व्हाट यू मीन बाय एरे। Array in a PHP is a type of a data structure that allow you to store a multiple elements of a similar data types under a single variable, thereby saving use the effort of creating a different variable for every data. अगर आपको एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आपको मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू कुछ इंपोर्ट करवानी हो, स्टोर करवानी हो, तब आप एरे को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एरे ली लिया, एरे इक्वल टू नंबर, ऐसा एरे का मैंने नाम दे दिया नंबर का। फिर उस पर मुझे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डिफरेंट मतलब वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 10 डाल दूंगा, फिर 10.5 डाल दूंगा, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू भी आ गई। फिर 10.55555 ऐसा कुछ लॉन्ग वैल्यू मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो वो लॉन्ग डेटा टाइप भी आ जाएगी। तो मल्टीपल डेटा टाइप्स इन अ सिंगल वेरिएबल्स के तौर पे वो काम करेगी, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड योर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड योर एरे, क्या आप एरे को उसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देयर आर एरे helpful to create a list of element of a similar types which can be accessed using their index or key. Suppose we want to store 5 names and print them accordingly. This can be easily done by the use of 5 different string variables. क्या करेगा कि अगर मुझे 5 नाम स्टोर करवाने हैं, ठीक है, 5 नाम मुझे स्टोर करवाने हैं, देन आफ्टर आई कैन इजीली डन बाय विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स इन अ एरे स्टेटमेंट, राइट। एरे स्टेटमेंट में हम स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज़ करके वो 5 नाम स्टोर करवा सकते हैं इजीली। बट इफ इंस्टेड ऑफ 5 नेम्स raises the 100, then it would be really difficult for the user to develop to create your many different variables, ठीक है। अगर 5 वैल्यू कोई मुझे डालना है, इजीली स्टोर करवाना है, तो वो इजीली हो जाएगा। $1 इक्वल टू मयंक, $B इक्वल टू XYZ, $C इक्वल टू ABC, ऐसी कोई भी मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, तो वो इजी रहता है। लेकिन जब हमें 100 नेम्स या तो फिर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड को स्टोर करवाना हो, तब वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तब उस टाइम पे हम एरे को क्रिएट करते हैं। एरे को क्रिएट करके हम उस पर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। Here the array comes into the play to help us store every element within a single variable and also allow easy access using the index or a key. अब गाइस इंडेक्स वैल्यू के तौर पे एरे काम करेगी, यानी कि आपके पास 1 से लेके 100 तक का डेटा है, तो ईच एंड एवरी टाइम्स उसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। सो 0 से लेके वो 99 तक स्टोर करवाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना वो स्टोर होगी 0 की वैल्यू में, ठीक है। एंड देन जो 100 वैल्यू होगी वो स्टोर होगी 99 में। तो इंडेक्स वैल्यू के तौर पे एरे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अन एरे इज अ क्रिएटेड यूजिंग एरे फंक्शन, उसके लिए आपको एरे फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई कि व्हाट यू मीन बाय एरे, तो कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू स्टोर
मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, राइट। सो ये बहुत ही सिंपल तरीके से एरे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी टाइप कौन कौन से हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट पे वेब डेवलपिंग में हम उसका यूज़ करवा सकते हैं, अब उसके बारे में थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। इंडेक्स और न्यूमेरिक एरे, फर्स्ट उसकी टाइप जो है वो है इंडेक्स एंड न्यूमेरिक एरे। An array with a numeric index where value are stored linearly। किस तरीके से काम करता है कि अगर आपने जो इंडेक्स एरे क्रिएट किया है तब वो किस तरीके से वैल्यू को स्टोर करेगा, लीनियरली। देन सेकंड थिंग इज एसोसिएटिव एरे, an array with a string index where instead of a linear storage each value can be assigned a specific key। जब न्यूमेरिक वैल्यू मुझे चाहिए थी तब मैंने इंडेक्स एरे का यूज़ किया, अब मुझे कुछ स्ट्रिंग या तो फिर कैरेक्टर वैल्यू चाहिए तब मैं कौन सी एरे का यूज़ करूँगा, तो कि एसोसिएटिव एरे का, ठीक है। उसकी स्पेसिफिक की का यूज़ करके मैं उस पर मल्टीपल वैल्यूज़, स्ट्रिंग वैल्यूज़ स्टोर करवा सकता हूँ। एंड थर्ड आता है मल्टी डायमेंशनल एरे, an array which contain a single or multiple array within it can be accessed via multiple index। अगर मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे चाहिए यानी कि 2x2 या तो फिर 3x3 मल्टी डायमेंशनल एरे चाहिए, ठीक है, तब मैं उस पर क्या करूँगा कि सिंगल वैल्यू के तौर पे, मतलब सिंगल वेरिएबल में मैं मल्टीपल एरे को असाइन कर सकता हूँ, ठीक है, इंडिकेट कर सकता हूँ। तो ये तीनों टाइप्स है उसकी। अगर उसको आप इजीली तौर पे अगर आप देखना चाहते हो तो सिंगल डायमेंशनल एरे, देन 2D यानी कि 2 डायमेंशनल एरे, एंड थर्ड इज मल्टी डायमेंशनल और एक्सेट्रा। इस तरीके से एरे को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो एरे के बेसिस पे हम किस तरीके से उस पर एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले PHP के कोडिंग में $A डिक्लेयर किया है वेरिएबल, उस पर मैंने स्टोर किया है एरे फंक्शन का यूज़ किया है, उस पर मैंने वैल्यू डाल दी 10, 12, 20 एंड 30। तो ये मल्टीपल वैल्यू हो गई इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में मैंने मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा दी। देन आफ्टर अगेन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि $A वेरिएबल डिक्लेयर किया, एरे फंक्शन का यूज़ किया, ए वैल्यू में मुझे 10 चाहिए, बी में मुझे 20 चाहिए और सी में मुझे कुछ स्पेसिफिक ऐसा कोई भी मतलब सिंबल चाहिए, ठीक है। तो उसको भी मैं की वैल्यू के तौर पे, इसको की वैल्यू बोलते हैं, ये की हो जाती है, ये उसकी वैल्यू होती है, ये की, ये उसकी वैल्यू, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हो। बहुत तरीके हैं एक को एरे को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, एरे को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन $A एरे 5 = 1, 5 की वैल्यू क्या रहेगी, 5 मतलब 5 की होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी, 3 की 2 होगी और 1 की 3 वैल्यू होगी। तो जब इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, इंडेक्स वैल्यू काउंट होगी, तो जहाँ पे 5 वैल्यू की आएगी ना उसकी वैल्यू वो 1 कर देगा, फिर 3 की आएगी उसकी वैल्यू वो 2 कर देगा, एंड जो 1 की आएगी उसकी वैल्यू वो 3 करके आपको दिखाई देगा, ठीक है। और देन आफ्टर एरे फंक्शन को मैं इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये बात हो गई कि सिंपल एरे की। फिर अगर मुझे कुछ मतलब वैल्यू डिफाइन करनी हो कि 2 डायमेंशनल एरे चाहिए या तो फिर 3 डायमेंशनल चाहिए या तो फिर सिंगल डायमेंशनल, तो भी मैं करवा सकता हूँ। यहाँ पे $X 5 × 5 कर दूंगा तो वो क्या होगा, 5x5 का एरे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। 5 रो 5 कॉलम, ऐसे जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। सो मैट्रिक्स में भी अगर आप एरे का यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करता है। अब ये बात हो गई कि किस तरीके से एरे को जनरेट किया जाए। अब उसके थोड़े से प्रैक्टिकल सेशन में आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल सेशन में हमें अगर कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो हम एरे का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी एडिटर से एरे का प्रोग्राम स्टार्टअप कर सकते हो। सेम एज इट इज़ मुझे वेब पेज में ही एरे PHP का कोड करके एरे को क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम एज इट इज़ जो हमारा जो प्रॉपर रहता है HTML बॉडी, वो टेक स्टार्ट करके PHP स्टार्टअप कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर,
उसके अंदर मैंने एरे फंक्शन का यूज़ किया, फिर मैंने उसके वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 5, मुझे 5 तक की एरे चाहिए, ठीक है। फिर मैंने हर बार एक लूप चलाया है फॉर ईच लूप से कि डॉलर नंबर एज अ वैल्यूज़, जो डॉलर नंबर में मुझे आएगा ना उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करके दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। अब वैल्यू किस तरीके से प्रिंट होगी, तो कि वो इंडेक्स वैल्यू तरीके से प्रिंट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक मैसेज वैल्यू इज़, एंड जो वैल्यू आएगी वो मुझे प्रिंट करके दिखाई दे। तो नंबर इंडेक्स वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यू रहेगी, तो कि नंबर नाम के वेरिएबल में जीरो की इंडेक्स की है ये, जीरो में मुझे 1 चाहिए, 1 में मुझे 2 चाहिए, 2 में मुझे 3 चाहिए, 3 में मुझे 4 चाहिए, एंड 4 में मुझे 5 चाहिए। ऐसी की वैल्यू, की और वैल्यू दोनों को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो वो किस तरीके से सेकंड मेथड में काम करेगा, तो कि वही एग्जांपल के तौर पे नंबर्स को भी प्रिंट करवाएगा और वैल्यू को भी प्रिंट करवाएगा। इसका अगर जब आप आउटपुट देखोगे तो ऐसा कुछ आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ लोकल होस्ट पे, एंड देन एरे, आप ऐसे भी कर सकते हो array.php ऐसे पूरा नाम लिख के आप डायरेक्टली उस फाइल को रन करवा सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू इज वो कॉमन रहेगा क्योंकि वो मैसेज था, फिर 1 2 3 4 5 उसकी जो वैल्यू थी वो हमें प्रिंट करके दिखाई दी, ठीक है। और देन हर बार मुझे जो मैंने की और वैल्यू दोनों डाली थी, 10 मिनट, जो मैंने की और वैल्यू उसकी डिफाइन की थी वो डायरेक्टली मुझे प्रिंट करके दिखाई दे दी, ठीक है। तो अब उसी तरीके से सिंपल सा कोडिंग हो जाता है इसका PHP का, जिस पे आप मतलब इन अ सिंगल लाइन पे आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोरेज करवा सकते हो। यही हमारा एरे का काम होता है। फिर 2 डायमेंशनल लेना हो तो वो कर सकते हो, 3 डायमेंशनल लेना हो तो वो कर सकते हो, एरे मैट्रिक्स बनाना हो तो भी आप बना सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसी है गाइस, वो लॉजिकल बेस हो जाती है, ठीक है। जितना आपका लॉजिक चलेगा उतना ही आप उस पर डीप में काम कर पाओगे। तो ये एरे उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर एरे को प्रिंट करवाना हो तब उसके थियोरेटिकल पार्ट्स में कई सारी चीज़ें आती है कि PHP प्रोवाइड 2 फंक्शंस कैन बी यूज टू आउटपुट अ वेरिएबल वैल्यू रिकर्सिवली। प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज़, फंक्शन का यूज़ करके भी आप एरे को प्रिंट करवा सकते हो। एंड सेकंड इज वेरिएबल डंप, उस फंक्शन का यूज़ करके भी आप एरे को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। और सिंपल इज दैट, अगर आपने कोई वेरिएबल पे स्टोरी का दिया है तो यहाँ पे आपने जो कोडिंग देखा था उसी तरीके से आप करवा सकते हो। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है, मतलब बहुत ही डिफरेंट तरीके होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि एक वेरिएबल में मैंने एरे को स्टोर करवा दिया। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल एरे लिया होता और उसको प्रिंट करवाना होता तो मुझे प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज़ करके एरे को प्रिंट करवाना पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, एक वेरिएबल में एरे को पूरा का पूरा स्टोर करवा दिया और फिर उसी वेरिएबल को इको करके मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो वो एरे उसी तरीके से भी प्रिंट हो सकता है। मतलब बोला ना कि डिफरेंट टाइप से हमारा जो लॉजिक चलता है, जिस हिसाब से भी हमारा लॉजिक चलेगा उस हिसाब से PHP पूरी की पूरी लैंग्वेज वर्क करेगी। क्योंकि ये पूरी की पूरी लैंग्वेज गाइस बहुत ही नॉर्मल और डायनेमिक है। मतलब जितना आप अपना लॉजिक चला सकते हो सिंटेक्स वाइज तब आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है मल्टी डायमेंशनल एरे की, तो आपने ऑलरेडी बात तो हमने कर ली, लेकिन ये उसका एक एग्जाम्पल है कि एरे को सिंगल में भी बना सकते हो, फिर एरे को इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो, डॉलर एरे, फिर उसके अंदर एरे फंक्शन, एंड देन दो वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे ऐसे ही एक चाहिए कि एरे फंक्शन का यूज़ करके उसकी 2 वैल्यू चाहिए तो भी मैं करवा सकता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे एरे 0 और एरे 1 चाहिए, तो एरे 0 में जो वैल्यू होगी वो और एरे 1 में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करके दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा रिवर्स प्रिंट करवाना हो कि अगर मुझे उसके साथ साथ एरे 1 की जो की वैल्यू होगी वो भी चाहिए और एरे 0 की वैल्यू होगी वो भी मुझे प्रिंट करवाना है तो भी मैं करवा सकता हूँ। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे हो जाता है, ठीक है। एरे ऑपरेशन का यूज़ आप कर सकते हो। एरे ऑपरेशन में आप एरे 1 2 3 ऐसा कुछ डिफाइन करके उस पर अपनी की
की तौर पे जो जो वैल्यू डालनी है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर अगर मुझे यहाँ पे अगर देख सकते हो आप कि मुझे एरे को प्रिंट करवाना हो है, तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन का यूज़ किया, वेरिएबल अंडरस्कोर डंप एंड देन डॉलर ए एंड प्लस डॉलर बी। तो ये दोनों जो डॉलर ए और डॉलर बी की जो वैल्यू होगी वो एडिशन होके मुझे प्रिंट करके दिखाई देगी। एरे की साइज़ क्या है तो कि 6, 0 में वो इंटीजर 1, 1 में वो इंटीजर 2, फिर इंटीजर 3 में वो ए। तो ऐसी की और वैल्यू के तौर पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। देन आफ्टर आता है कि अगर मुझे उस पर कुछ काउंटिंग करना हो, सर्चिंग करना हो, एडिंग करना हो, डिलीटिंग करना हो, तो भी मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो कि एरे फंक्शन का यूज़ करके एरे उसकी वैल्यू डाल दो, नल वैल्यू, एंड देन बी की मैंने वैल्यू डाल दी 2। फिर हर बार मैंने क्या किया कि एरे अंडरस्कोर की अंडरस्कोर एग्जिट करके मुझे सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। तो अगर ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर डिलीट करना हो तो वो डिलीट फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हो। ऐड करवाना हो तो ऐड एलिमेंट फंक्शन का यूज़ करके आप एरे के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड भी करवा सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे ऐड करवाना है तब मैं इन एरे ये फंक्शन का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, 2 ऐसी वैल्यू मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है। तो वो वैल्यू ऐड हो जाएगी एरे के तौर पे। तो इस तरीके से गाइस एरे के बहुत सारे मतलब ये दिस इज़ द पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्राम वेब डेवलपिंग लैंग्वेज एंड अदर काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एरे और जो फंक्शन का जो होता है ना कॉन्सेप्ट, वो बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही पावरफुल होता है, जिसकी मदद से आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो ना तो इजीली आप सीख सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने बात की कि पीएचपी में सिंटेक्स थोड़ी सी अलग डिफरेंट हो जाती है, तब हम पीएचपी का यूज़ करके किस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स है वो हमने जान लिया, इनबिल्ट, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एंड एरे को हमें तीनों टाइप में, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, तो वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था कि ये फंक्शन का यूज़ किस तरीके से किया जाए और एरे का यूज़ किस तरीके से किया जाए, ठीक है, इन अ पीएचपी लैंग्वेज। क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में भी आप यूज़ करते हो लेकिन उसमें सिंटेक्स थोड़ी सी अलग रहती है, यहाँ पे सिंटेक्स अलग हो जाती है। फिर वहाँ पे अगर आपको कंपाइलर मिलेगा, इंटरप्रेटर मिलेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे क्या होगा, वेब सर्वर आ जाएगा कि जो कम्युनिकेट करेगा आपके वेब पेजेस के सर्वर साइड, आपको कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। तो अब आप मल्टीपल मतलब उस तरीके से आपको रन करवाना हो तो आपको ज़ैम्प और वेम का यूज़ करके आपको पीएचपी के कोडिंग को रन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने ये सारी की सारी चीज़ें कवर अप की है। अगर उसमें भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो आज के सेशन के अंदर जो जो हमने टॉपिक लिए एरे फंक्शन उसमें, तो आप इजीली अभी पूछ सकते हो। कोई भी आपका डाउट्स हो, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? नो। ओके, सो आज के टॉपिक में बस इतना ही था कि हम फंक्शन किस तरीके से बना पाए और एरे किस तरीके से किया जाए, ठीक है, इन अ पीएचपी लैंग्वेज। क्योंकि वो डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए और डायनेमिक मतलब वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बहुत ही पावरफुल तरीके से अभी मार्केट में और बहुत ही कॉमन तरीके से चल रही है। फिर उसके एडवांस लैंग्वेजेस में चाहिए तो नंबर 1 के तौर पे तो आता ही है जावास्क्रिप्ट, एंड देन डॉट नेट भी अवेलेबल है। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस है पीएचपी, डॉट नेट, जावास्क्रिप्ट, वो सारी वेबसाइट डेवलपमेंट में काम की जाती है, ठीक है। तो आज के सेशन में अगर आपको कुछ और कोई पूछना हो, किसी तरीके का क्वेश्चन या फिर डाउट्स हो तो अब आप पूछ सकते हो। एंड देन अदरवाइज थैंक यू सो मच गाइज। कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है ना गाइज आपके? नो सर। Okay, thank you so much guys, all of you. Hope you enjoy this session.
थैंक यू। थैंक यू।